Hello, good evening, Monty. I'm not Mr. X, Mr. M, Mr. Mehta. Hi, Scorpio. Hi, Amandeep. And Ankita. Hi, Ankita. How are you? Hi, Bhushan, Rashi, everyone. Very good evening, yeah. Very good evening, Monty. Very good evening, everyone. And this. Hi, Vishaka. Hi. Hi. I hope I'm visible properly because I'm trying to put up some background and I hope the background is going good. Hi, Ankita. How are you? Very good evening. I hope you're doing great. So, first of all, thank you very much. Background tab, please. And thank you. Thank you, Monty. Thank you. Sid has also joined in. Okay, so a very, very, very good evening one more time to this fantastic session of It's My Story, What's Yours? And today we have a very, very, very multi-talented personality with us, जो मैंने कल आप लोगों को मेरे लाइव सेशन में बताया था और काफ़ी लोगों ने मेरी स्टोरीज में भी देखा है. So we have this fantastic person with us who's gonna come to this live session in I think 2 minutes. And she's gonna tell us the entire story. कैसे उन्होंने जो आज तक अचीव किया है, किस तरीके से अचीव किया है. And it's a fantastic journey. I was so much excited when I had a talk with her. So I told her, it would be a pleasure if you come online and you come live with us and share your actual story. So we have our very own Vrushali Taide. A lot of people know her. ऐसे ज़रूरी नहीं कि मैं उनका पूरा इंट्रोडक्शन दूँ, पर जो परंपरा है उसे निभानी पड़ेगी. So Ankita, and thanks to you we get to meet the well-known Nasikites on this platform. Thank you so much, Ankita. Thank you. Atul has joined in. Hi Atul, I hope you're doing great. What's my story, Monty? My story is yet gonna come. और मेरा स्टोरी तो मैंने स्टार्ट के फर्स्ट एपिसोड में मैंने थोड़ा सा बताया था. उस स्टोरी को हम लोग को आगे भी लेके जाना है. बहुत ही जल्द मैं अपना भी स्टोरी रिवील करने वाला हूँ. बट देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आर कमिंग हियर, who would be coming online and they're gonna share their success story, their success mantra, I would also say. So tonight we have Vrushali Taide with us. अब क्या बोलूँ उनके लिए मैं. She has been a teacher, an event coordinator, she has been an anchor, and she has been now a fitness trainer and a lot of things. So she'll be here joining us very soon, and she'll be sharing the entire story, her struggles, because it's very, very, very easy to just comment on someone that अच्छा ये तो वो करते हैं, ये वैसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं. It's not an easy task to do this because I'm here, Atul is here, Monty is here, and I'm sure a lot of people over here know this, that what actual things we go through in our life. And so here we are sharing stories with you. Atul, it is history. Yes, Atul, it's history. Seema ji, thank you very much. Very good evening. Datta sir, thank you very much to join in. And Namita, right from Jalgaon, she has been with us right now. And I'm waiting. So we have Vrushali right now, who is just logged in. And I'm waiting, Vrushali. Everyone is waiting for you. So if you send us an invite, we can just invite you on this fantabulous session. And we are waiting for Vrushali right now. And in the meantime, a lot of people are joining in. So Atul, thank you very much, brother, to join in today. I hope you have got some time to be online.
Fitoholic is here. Riddhi, the physiotherapist. Riddhi, hello to all the friends in the house. So here the DJ speaks. Hello, everyone, all the people in the house. Riddhi is a very good physiotherapist and जब भी मुझे कोई चोट लगती है तो एक ही डॉक्टर मुझे याद आते हैं, वो है रिद्धि. So people, I hope nobody suffers from a lot of injuries like I do. So if you're suffering from any kind of an injury, Riddhi is right here. Yeah, hi Sakshi, hi Kalpana, thank you for joining in. Fitoholic is here. I hope Fitoholic you had a lovely batch this evening. Sagar, Kalpana, hi, hello, how are you? I'm absolutely fine. Guys, before getting into the entire session, I would just like to share one more thing that a lot of bad things, a lot of fake news have been continuously on the float that vaccination लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ये वो. Please don't go on with the fake news which has been circulated. Please go and just take your vaccinations when your time comes. Now we have Rushali, thank you very much. I'm fine. How are you? Fantastic as usual. Rushali, now since you are here, I need to do the actual ritual of my show. Okay, so my show starts off with a very, very good evening, people, and you are welcome. And I hope everyone is doing fit, fantastic, and fabulous. And definitely, fitness instructors here on screen, people are doing great. So, Vrushali, how was your day? First of all, how was your day? अरे great. Today I'm very happy that I worked out after 4 days. मुझे रोन ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरी जान निकाल दी. That I was not able to work out because of my injury. और आज मैंने with doctor's permission मैंने आज workout किया तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है. I'm feeling so fresh. Yeah, you were through some injury, I suppose. क्या हुआ था आपको? जरा वो भी तो आप स्टोरी के अलावा बता सकते हैं. एक्चुअली मेरा पैर स्लिप हो गया था एंड मुझे स्टिचेस आए. वो जो अपना ये रहता है ना सैनिटाइजर स्टैंड, उसका फुट प्रेस मेरे फिंगर्स के बीच में गया एंड इट वाज अ डीप कट. आई गॉट इन बट नाउ आई एम क्वाइट रिकवरिंग. आई एम ऑल वेल. एवरी डे मुझे बहुत सारे विशेस आ रहे हैं. विद ऑल द गुड विशेस आई एम डूइंग गुड. सर ग्रेट सर. सो यू आर नाउ फिट, fantastic and fabulous. तो आप हुई तो आप you're back on your routine. Yeah, yes. So now first of all हो गया ritual, हम लोग ने start कर दिया. Now let's get going. See, I know you since years now, so you have played all the roles up till now, and I would start off as you're a wife, you're a mother, you've been a teacher, you've been event coordinator, executor, you've been everything into the events. You've been an anchor. Yes. And now you're into the fitness industry. And by the way, welcome to the fitness industry. And your brand name is Aim Fit. Yes. Yeah. So इसमें से आप एक चीज मुझे पूछनी, इन सब इतनी चीजों में से आपको वक्त मिला था कहीं थोड़ा सा, तो आपने उस वक्त में क्राउन और एक खिताब भी जीता हुआ है. ये सच है. Start off with your story. Okay, first of all, very few people know that I was a teacher at Fravashi College. बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि एक साल ही थी मैं. I'll start with my marriage. Basically, I'm from Mumbai. After marriage, I shifted to Nasik. And Rohan, let me tell you, Mumbai और Nasik was like, ज़मीन आसमान का फर्क है. अभी I totally love my Nasik, but तभी मुझे इतना difficult था to cope up with the timing. मेरे पास इतना टाइम था और करने के लिए कुछ भी नहीं था. और सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि जॉब
मतलब आई वॉज देयर एज HR एग्जीक्यूटिव, तो मैं यहाँ पे HR के अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही थी, बट आई वॉज नॉट गेटिंग प्रॉपर जॉब, और जॉब मिल रहा था तो सैलरी बहुत कम थी। चलो मैं खैर आई एम रेडी टू वर्क, पर आई वॉज ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वही था कि आई वॉज सर्चिंग फॉर अ जॉब, आई वॉज स्ट्रगलिंग, मैंने इतने इंटरव्यूज दिए, कहाँ कहाँ जाके मैंने इंटरव्यूज दिए, बट क्लिक नहीं हो रहा था। तब मैंने ऐसे ही बाई फ्लूक प्रवशी में इंटरव्यू दे दिया, बोले चलो ये भी ट्राई कर लेते, सिंस आई वाज गुड एट स्टडीज, और मैं सिलेक्ट हो गई, तो सोचा चलो कर लेते हैं। और ऐसे इस प्रवशी में वो जर्नी स्टार्ट हुई। देन वन मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बताया कि वृषाली, तुझा आवाज खूप चांगला आहे, तू एंकरिंग ट्राई कर। और तब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि एंकरिंग क्या होती है, लाइक आई वाज जस्ट शिफ्टेड, HR कहाँ, HR का बैकग्राउंड कहाँ, एंकरिंग कुछ भी कनेक्शन नहीं है। बट आई गॉट अ क्लू ऑन माई सन्स बर्थडे, जब मैंने मेरे बेटे का पहला बर्थडे किया था, तभी हमने एंकर रखा था, और तभी मुझे वो सब क्लू लगा कि ओके ऐसा इवेंट होता है, ऐसे इवेंट वाले होते हैं, ये सब बैकग्राउंड होता है। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग कि ये कैसे होता है, क्या होता है, अलॉन्ग विथ माई जॉब। तो साइड बाय साइड मैंने वो धीरे धीरे चालू किया। फिर आई गॉट द फर्स्ट असाइनमेंट, मॉन्टी, इफ यू रिमेम्बर, हमने पहली इवेंट किया था विथ मॉन्टी, और मैंने उसको बताया भी था कि मॉन्टी ये मेरी पहली इवेंट है, आई रियली डोंट नो हाउ टू होल्ड माइक ऑल्सो, एंड ही टोल्ड मी अरे कुछ नहीं आप कर लोगे। सो वैसे वो फिर वो एंकरिंग का स्टार्ट हुआ। आफ्टर डूइंग जॉब फॉर 1 year आई लेफ्ट द जॉब, और मैंने इमीडिएटली अपनी इवेंट्स कंपनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि बाय द टाइम मुझे वो स्टडी हो गया था कि ये कैसे होता है एंड हाउ टू गो अबाउट इट। तो वहां से ड्रीम्स इवेंट शुरू हुआ 10 years बैक। फिर एंकरिंग तो शुरू ही थी एंड देन इन लास्ट लॉकडाउन एम फिट स्टार्टेड, एंड आई एम डूइंग गुड इन एम फिट। Great. So apart from all these things, you have done great. Superb. Everyone knows this, and Monty ने अभी एक comment भी किया है that initially Monty ने आपके साथ parties की है, and बहुत सारा improvement है. Obviously, we keep on learning because it's just about learning. It's a journey. मुझे ये बताइए, आपका first anchor कौन था? जो आपने आपके आपके बच्चे के बर्थडे पार्टी के लिए कौन सा पहला एंकर रखा था? आई डोंट रिमेम्बर हर नेम यार, शी वॉज अ फीमेल, मुझे याद नहीं है, याद आए तो मैं बताऊंगी जरूर, बट अच्छी थी वो, अभी वो नहीं है। शी हैज बीच में उसने खुद का इवेंट्स का भी स्टार्ट किया था, बट आई थिंक शी हैज बैक ऑफ, आई डोंट नो, बट आई हैड टोल्ड हर कि वहां पे मुझे एंकरिंग की आइडिया आई थी। उनसे आपने आइडिया ले ली पूरी? Okay, great. Rushali, now tell me something about your AimFit. Apart from getting into AimFit now, I wanted to know how was the journey actually? कहाँ कहाँ struggle आया? Because as you know, the entire concept of a series is to know about your struggles. How did you work? How did the things come up to you? What was the thing going on into your mind while taking the first event or the first class? कैसे हुआ? What was the transition? And being a housewife, not even a housewife, you were working. So you had the family, you had your kid. I think you must have been into, you were into marriage and husband hai, ghar hai. How did things happen? इवेंट्स का जब मैंने पहली इवेंट लिया था रोहन, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है बताने को कि मेरा प्रॉफिट ओनली 500 था। बिल्कुल आई एम रियली हैप्पी विद दैट, क्योंकि आई स्टार्टेड विद दैट प्रॉफिट, एंड आई एम ग्लैड कि उसके आगे फिर जर्नी स्टार्ट की। फिर मैंने बर्थडे से फिर मैरिज, देन नेमिंग सेरेमनी, फिर आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, मैंने खुद के सेटअप्स लेना शुरू किया, फिर इट डेवलप्ड। तो इनिशियली चैलेंज ये था कि कुछ भी नहीं था मेरे पास, मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे और जॉब नहीं करना है। तो मैंने द डिसीजन वाज सो फास्ट कि मैंने फटाक से बोल दिया था मेरे प्रिंसिपल को कि मैं कल से नहीं आ रही हूँ, दैट्स इट, मुझे खुद का कुछ तो स्टार्ट करना है। एंड बाय गॉड ग्रेस मुझे नेक्स्ट डे पे इवेंट मिल गई थी, और वो इवेंट 500 की थी। अभी तक मेरे पास वो इवेंट का फीडबैक है, वो एक रिटर्न फीडबैक उन्होंने दिया था, मेरे हाथों में गूज़बम्स आ रहे हैं
कि उन्होंने फीडबैक दिया था, बहुत अच्छा फीडबैक दिया था। तो वहां पे कुछ भी नहीं पता था कि बलून डेकोरेशन होता कैसे है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं एंकरिंग कर रही हूँ, बाकी सब कुछ नहीं पता था। फिर स्लोली स्लोली सीखा, समझा। ऑफ कोर्स स्ट्रगल था, एंड यू नो अपनी इवेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कंपटीशन बहुत है, तो एवरी टाइम यू हैव टू कम अप विद न्यू थिंग्स। हर एक टाइम अलग अलग चेहरे होते हैं, तो तुम्हें नई चीजें लेके आना पड़ता है टू हैव दैट योर डिफरेंट आइडेंटिटी। तो That's right. वहां पे मेरे एंकरिंग में मेरी राइटिंग बहुत मुझे काम आई। आई एम वेरी गुड एट राइटिंग, तो वो मुझे बहुत काम आई टू राइट माई स्क्रिप्ट, टू राइट माई शायरीज एंड ऑल। और इवेंट्स में ऑफ कोर्स आई वुड रियली लाइक टू थैंक मकरन। मकरन ने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि जब मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी हुई थी, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, तब पूरा हैंडओवर उन्होंने किया था। एंड ही इज अ ग्रेट इवेंट प्लानर। So और yeah, फिर I would like to cut you here. The people who do not know, Makrand is Vrushali's husband और हम सब उनको प्यार से मैक बुलाते हैं। और ये एक उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन है जो बाद में आपको पूछूंगा। प्लीज कंटिन्यू वृशाली। फिर सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, फिर वापस बाउंस बैक करना था एंकरिंग में, फिर अगेन गेटिंग फिट, एंड देन यू नो अपने एंकरिंग में कैसा है, प्रेजेंटेशन इज, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। तो आई स्टार्टेड विथ 89 kgs। और तभी मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था रोहन की न्यूट्रिशन कैसे होता है। बस इतना पता था कि मुझे वेट कम करना है, मैं कार्डियो कर किए जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि स्ट्रेंथ वर्कआउट इज द की या राइट न्यूट्रिशन इज द की। अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, यू नेम इट, और मुझे वो सब पता है, क्योंकि मैं सब ट्राई कर चुकी हूँ। आई रियली स्ट्रगल्ड फॉर प्रॉपर वेट लॉस, कि राइट तरीके से वेट लॉस कैसे होना चाहिए, उसके लिए मैंने खुद बहुत स्ट्रगल किया। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ आज के डेट पे कि कोई और वो स्ट्रगल करे। सो वेन एवर क्वेरीज कम्स टू मी ना, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि वो रिजॉल्व करे, ये सारे मिथ्स है, ये मत फॉलो करो, ये चीजों पे बिलीव मत करो, स्टार्ट डूइंग दिस थिंग। मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ, अपने वर्कआउट शेयर करती रहती हूँ, छोटे छोटे टिप्स शेयर करती रहती हूँ। तो जनरल आप लोग अगर फॉलो करोगे तो इट विल बी वेरी इजियर, बिकॉज आई डोंट वांट एनीबडी एल्स टू गेट इनटू दैट ट्रबल, बिकॉज फॉर लेडीज इट्स वेरी डिफिकल्ट पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लूज करना। एंड बीइंग इनटू द सेक्टर जहाँ पे आपको प्रेजेंटेबल दिखना है, यू हैव टू बी एट प्रॉपर शेप, डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो वहां पे मुझे बहुत स्ट्रगल हुआ था। बट लास्ट ईयर लॉकडाउन में इट वॉज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न द न्यूट्रिशन, टू लर्न द साइंस ऑफ फिटनेस। तो मैंने वो लर्निंग स्टार्ट की। ऑब्वियसली द बेसिक नॉलेज आई वॉज हैविंग, बट वो जो इन डेप्थ ट्रेनिंग थी वो मेरी लास्ट ईयर हुई। एंड देन आई स्टार्टेड InFit, and InFit now it is more than 200 people family, and everyone is getting results. And मुझे जब किसी का वेट लॉस होता है ना रोहन, मुझे लगता है मेरा वेट लॉस हुआ है, और मैं खुशी से पागल हो जाती हूँ। सीरियसली मुझे इतनी खुशी होती है मेरी हर एक स्टूडेंट की जर्नी देख के। और वृशाली, आई वुड से कि अब आप ज्यादा वेट लॉस ना करें। आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। आई हैव सीन द एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन, because Yes. we have worked together, we have been friends, so I know the entire transformation that you have gone through. So बहुत ही अच्छा है। And when you say this that किसी का वेट लॉस होता है और मुझे लगता है कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, this is definitely saying वो अंदर वाली टीचर अभी भी कहीं पे है ना, वो टीचर बाहर आ रही है। Okay. Yes. Great, yeah, great. So now this became a complete journey where we see Vrushali from being a teacher to AimFit, right? Now, Vrushali, to getting into anchoring, what was your biggest struggle to get into anchoring? I wanted to know this. Because, see, being an anchor myself, Vrushali, we do get a lot of questions at times. People message, people call up कि मेरे XYZ को एंकर बनना है, मेरे इसको एंकर बनना है, मुझे एंकर बनना है, तो मुझे क्या करना है। तो कैसा आपका मेन फियर क्या था? व्हाट इज द फर्स्ट फियर दैट यू हैड? व्हाट वाज योर स्ट्रगल ऑल टुगेदर? आई रियली वांट टू नो दैट, बिकॉज वी ऑल नो वृशाली, but we do not know Vrushali. So what is that Vrushali all about?
स्ट्रगल एज सच मैंने जैसे कहा कि मेरी पहली इवेंट जो थी, मुझे माइक कैसे पकड़ना है वो भी नहीं पता था। मैंने जस्ट स्टार्ट कर दिया था। जो मेरे पास था, जो मेरा क्या बोलता है खजाना था, वो था मेरा आवाज। मुझे सिर्फ उसी के ऊपर काम करना था। आई वॉज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग वॉट आई डोंट हैव, आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग वॉट आई हैव एंड हाउ आई कैन मेक इट इफेक्टिव। वहां से फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन स्टार्ट किया, मतलब सीखना चालू किया। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एक्सपीरियंस वो समझते गए। पर अभी भी बड़ी इवेंट होती है रोहन तो डर लगता है मुझे। ऐसा नहीं है कि एकदम कॉन्फिडेंट रहती हूँ, बट एक हमेशा रहता है नहीं ये अच्छी होनी चाहिए, आई हैव टू गिव माई बेस्ट, दिस हैज टू बी द बेस्टेस्ट इवेंट ऑफ माई लाइफ। वो मेरा हमेशा का रहता है। तो मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ कि आज की इवेंट मेरी सबसे अच्छी इवेंट हो। एंड आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कभी खराब इवेंट हुई है, हमेशा अच्छी हुई है क्योंकि दिल से काम किया है। मैं हमेशा लोगों को वही बोलती हूँ कि अपने पैशन को पहचानो, क्योंकि जब आप पैशन के पीछे जाओगे ना, तभी आप फेलियर बहुत कम पाओगे। और वो स्ट्रगल भी स्ट्रगल नहीं लगता है, इट इज लर्निंग फॉर यू एंड यू एंजॉय दैट लर्निंग फेज। So truly said, yeah. And I मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कुछ देर पहले ये बोला था कि जब मेरा फर्स्ट इवेंट था और मुझे 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। और मुझे ये बोलने में आज भी गूज बम्स आ रहे हैं। अभी आपको गूज बम्स आ रहे थे। सो आई एम सो प्राउड, आई वुड से राइट नाउ टू से दिस एंड शेयर दिस विद एवरीवन, दैट मुझे बहुत अच्छा लगा है। थोड़ा सा मैं खुद की तारीफ कर लूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये सीरीज शुरू की है, क्योंकि इसका मोटिव ही ये था वृषाली, that every person who has been who's been known to the people, but लोग उन्हें एक्चुअली नहीं जानते। तो राइट। आज ये जो आपका पास्ट रहा, ये जो आपका हिस्ट्री रहा, ये जो आपका स्ट्रगल रहा, यू आर रीलिविंग दैट थिंग, दैट मोमेंट राइट नाउ। सो आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव लिव्ड दैट मोमेंट राइट नाउ और आपको वो गूज बम्स आए। तो आई थिंक वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड बहुत। यस डेफिनेटली। नाउ और वृषाली, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, प्लीज गो ऑन। हाँ, मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी कि रोहन इज द पर्सन, नहीं आई रियली वांट टू मेंशन इट हियर कि मैं ऑलमोस्ट कितने सालों से, जब से मैंने इवेंट में पार्टिसिपेट किया है या स्टार्ट किया है, तब से मैं रोहन को जानती हूँ। मैंने काफी बार, इफ यू रिमेम्बर वी हैव डन एफबीबी का इवेंट, आई नो। तब आई हैड कॉल्ड यू एज अ कोरियोग्राफर। और तब से वो काफी हम्बल है। और उनकी सबसे एक बात मुझे जो अच्छी लगती है वो है वो अप्रिशिएट करते हैं अपने आसपास वालों को। इवन इफ यू आर एट द सेम लेवल, मतलब आप एक एंकर हो, दूसरे एंकर को अप्रिशिएट करते हो आप, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। अभी भी आपने ये जो सीरीज स्टार्ट की है, ये इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव रोहन। मतलब काफी लोगों को काफी मिथ्स होते हैं, वो मिथ्स से बाहर आने के लिए, टू गेट चार्ज अप, टू गेट मोटिवेटेड, टू गेट इंस्पायर, टू शेयर द स्टोरी, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। सो कुडोस टू यू। So much. Thank you, thank you, thank you. And all these energies I get with all the people who are around me, so I can do good. Now coming back to your anchoring thing, जैसे आपने कहा, आपने एक चीज और शेयर की वृषाली के, आज भी जब बड़े इवेंट्स होते हैं तब गूज बम्स आते हैं, बटरफ्लाइज आते हैं पेट में स्टार्ट करने से पहले। मुझे भी आते हैं। तो थैंक यू मोंटी, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। मैं अभी ब्लश कर रहा हूँ, मैं इतना शर्माता कभी भी शर्मा रहा। ओके, सो बात मुझे ये पूछनी थी, क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत पूछा गया है, तो मैं आपको पूछता हूँ, सो यू कैन आंसर। जब हम लोग जाते हैं एज एन एंकर, वी आर होल्डिंग अ माइक, हमारे सामने ऑडियंस है जो 200, 500, 2000, 3000 भी होती है। एंड काफी बार हम लोग उस मूड में नहीं होते हैं। ये होता है हमारे साथ, यू नो द मूड। maybe we are dealing with our own struggles in life, because everyone does that, you know. True. How do you get charged up behind the stage? I am saying behind the stage हम खड़े हैं माइक लेके के, हम लोग जाना है, हमें शुरुआत करनी है, हमें एक क्यू मिले और हम जाए। बट उसी से पहले हो सकता है वी आर डीलिंग विद आवर ओन पर्सनल इश्यूज, वी आर डीलिंग विद समथिंग, मे बी जैसे आपकी एक इंजरी हुई है,
अभी पैर में, और कहीं पे कमिटमेंट होता है कि हमें जाके इवेंट करना है, वी स्टिल गो एंड वी डू दैट इवेंट. सो हाउ इज योर पर्सनल चार्जिंग अप गोइंग ऑन? कैसे आप अपने आप को चार्ज अप करते हो? यू गो ऑन, यू बैंग ऑन द इवेंट एंड यू कम बैक विद दैट स्माइलिंग फेस. हाउ डू यू डू दैट? बेसिकली मैं अपने माइक का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ. जैसे ही माइक मेरे हाथ में आता है ना रोहन, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है. मैं रुशाली रहती नहीं हूँ, मैं एंकर हो जाती हूँ. वो एक चीज है. और दूसरी चीज, मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाती हूँ कि ये ठीक है मेरे लिए हमेशा की इवेंट है, पर वो सामने वाले की एक ही इवेंट है, लाइफ टाइम इवेंट है, एंड आई हैव टू गिव माई बेस्ट. देयर वेर इंसिडेंट्स की जब आई वॉज नॉट इन द मूड या कुछ इश्यूज हो गए थे. लाइक आई वॉन्ट टू शेयर वन इशू की एक बार ऐसा हुआ था कि पार्टी थी और आई वॉज रेडी. मुझे 10 मिनट पहले एक कॉल आया कि मेरी एक क्लोज फ्रेंड के हस्बैंड एक्सपायर हो गए. तो आई वॉज लाइक tears in my eyes, but I control कि नहीं, this is for them, it is just one time. साल में एक ही बार करेंगे वो लोग, and it has to be memorable. You have to charge up. I just talk to myself, no, you are going to give you the best, give your best, or just happen. तो मैं basically I get my energy from my tool, that is our mic. Mike and the audience definitely. There's one question from Monty. What is Rushali's worst experience ever? वर्स्ट एक्सपीरियंस मोंटी अभी तक हुआ नहीं है. मतलब आई वोंट लाई, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि यार ये वर्स्ट है. क्योंकि मुझे ना एंकरिंग में मैं अपनी है ना ऐसे जान निछावर कर देती हूँ. जैसे रोहन भी पता है, मतलब आई हैव सीन रोहन की रोहन हमेशा आपने 3 इवेंट साथ में किया. आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड वो कितने आप थक गए रहेंगे, पर लास्ट इवेंट तक देयर वाज स्माइल, क्योंकि वो रोहन एंकर रोहन है. इट्स अ डिफरेंट पर्सनालिटी फ्रॉम रोहन मेहता. तो वो एक डिफरेंशिएट जब आप करोगे ना, तब आप कभी भी वर्स्ट नहीं होगा. और मोंटी अभी तक नहीं हुआ है वो एक्सपीरियंस, एंड मैं हमेशा प्रे करूंगी कि ये कंटिन्यू रहे कि आई शुड गिव द बेस्ट टू एवरीवन हु आर सेलिब्रेटिंग विद ड्रीम्स इवेंट और एनीथिंग और एनी अदर इवेंट्स. आई वुड से अभी तो वो कट भी नहीं होगा, और वो ना ही आपके पास वो वर्स्ट एक्सपीरियंस आएगा. बिकॉज अब जब लोग यहाँ से जाने के बाद वृशाली के वीडियोस देखेंगे जहाँ पे वो डंबल्स उठा रही है और सब उठा रही है, तो नोबडी विल एवर ट्राई टू मेस अराउंड विद दैट थिंग. नहीं यार, इनके साथ वैसा वाला एक्सपीरियंस पूछ रहे हो क्या मोंटी? अच्छा, वैसे वाले तो काफी फनी भी एक्सपीरियंस हो गए हैं रोहन. अभी रिसेंट वन आई वुड लाइक टू शेयर, अभी हमने किया था. और यहाँ पे मुझे मैक मतलब मेरे हस्बैंड का बड़ा वाला जो दिल है वो बताना चाहूंगी. जनरली क्या होता है कि जब हम लोग एंकरिंग करते हैं, बड़ी पार्टी होती है, तभी पीपल अगर वो छोटे मतलब सिटी में होगा तो उनको लगता है अरे एंकर ये वो, तो वो सेल्फी लेने आते हैं, एंड दे फील उनका अलग ही ये रहता है. तो लिटरली ऐसे 2-3 बंदे आए एंड दे वर लाइक मैडम सेल्फी लेना है. और मैक वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, सर प्लीज हमारा सेल्फी लो रहा. और मैक एक वर्ड भी नहीं, हाँ प्लीज प्लीज. मतलब आई वाज लाइक मैक काय तर बोलतो त्याच्यात काय म्हणे, त्यांच्यासाठी तू मोठी फिगर आहे, माझ्यासाठी तू नेहमीच बायको राहणार आहेस. सो स्वीट यार. एंड और दूसरा चीज ये भी है, बिकॉज आई हैव सीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैक ऑल्सो राइट नाउ बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग. अब उनके 2.5 किलो के हाथ दिखते हैं, तो कोई ऐसी भी कोई बदतमीजी करने नहीं वाला है. So, हाँ वो भी एक तो आई नेवर मतलब मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं है कि वर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि जब भी आउटडोर इवेंट्स होते हैं तभी मैक इज ऑलवेज विथ मी. और मेरा ऐसा रहता है कि जैसे इवेंट हो गया, माय टीम इज देयर, मेरी टीम आ जाती है, मुझे छोड़ देती है. तो ऐसा कभी हुआ नहीं है मोंटी. Great. So, Rushali, now tell me something more about the new concept, the new AimFit, the new thing that you are into. Because I feel जितनी passionately आप anchoring करते हो, उतना ही passionately you have come into this industry. And now tell me, Monty has said something, behind every successful female anchor is Mac. Not behind every successful female anchor. Please that, because
That can become something different. Behind a very successful female anchor, Vrushali. Back There is very strong and always supportive husband back. at yeah, Vrushali. So, what your new concept aim fit? कैसे आया ये दिमाग में? And how did it all start? तो मैंने जैसे पहले भी बताया रोहन कि मेरी जो जर्नी थी फॉर फिटनेस इट वाज वेरी डिफिकल्ट डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि कंप्लीट नॉलेज नहीं था हाफ जी, नॉलेज लाइक अगर जिम जाते हो तो फिटनेस का मिलेगा पर राइट न्यूट्रिशन नहीं पता चल रहा था तो एम फिट के अंडर जब आप आते हो यू गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन गाइडेंस यू गेट प्रॉपर फिटनेस और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जो चीजें मुझे डिफिकल्ट लगी व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी जैसे मुझे स्क्वाट का प्रॉपर पोस्चर जीरो से सिखाने वाला कोई नहीं था तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को स्क्वाट्स आना ही चाहिए मेरे स्टूडेंट्स को डेडलिफ्ट आना ही चाहिए तो मैं एकदम बेसिक से बेसिक जैसे इजी वे में सिखा सकती हूँ वैसे मैं सिखाती हूँ और मुझे इतना प्राउड होता है जब जिनको डंबल क्या होता है वो नहीं पता वो लोग 5-5 kg के डंबल लेके स्क्वाट करते वो मेरे लिए इतनी बड़ी जीत है ना रोहन तो इसलिए एम फिट के अंडर आई गिव बोथ द थिंग्स न्यूट्रिशन अलॉन्ग विद फिटनेस गाइडेंस great. So, why did this entire concept of launching AimFit came into your mind? Was it something? Uh, this is a question asked to me. Okay, so I'm asking you, what is the idea of launching this entire AimFit? Why AimFit? What, how the name came into the picture? How did the entire thing? Tell me. I mean, ओके tell. तो अगेन वंस अगेन आई टेक मैक्स नेम क्योंकि मुझे पुश करने वाला हमेशा मैक ही रहता है तो लास्ट लॉकडाउन में मैंने सीखना शुरू किया न्यूट्रिशन का नॉलेज लेना शुरू किया आई स्टार्टेड टेकिंग फिटनेस का ट्रेनिंग और तभी लाइक आई यूज टू गेट मैं ऐसे ही पोस्ट करती थी तभी पता नहीं था कि मैं ये सब करने वाली हूँ बट आई यूज टू गेट क्वेरीज कि ओके इसमें क्या है फिर शुड वी डू दिस और नॉट तो मैक वाज लाइक अरे तू इतना कर रही है कि तो तू प्रॉपरली स्टार्ट क्यों नहीं करती तो मैं आई वाज लाइक मैं कैसे करूंगी यार मुझे कैसे होगा लाइक क्या नहीं होगा तू स्टार्ट कर दे बोले ही वाज लाइक दैट तू चालू कर दे फिर नाम का ऐसा था कि वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड सृष्टि पाटिल शी इज द वन बिहाइंड द नेम क्योंकि वो न्यूमरोलॉजिस्ट है तो जब मुझे नाम लेना था तो मुझे ऐसा चाहिए था कि कॉम्पैक्ट हो एंड सुनते ही समझ में आए ओके आपको क्या मिल रहा है तो एम फिट यू आर जस्ट एमिंग एट द फिटनेस तो ये मुझे कॉम्पैक्ट लगा एंड देन आई टोल्ड हर ओके डियर ये नाम रखना है अरे परफेक्ट चल कैरी ऑन कर ले बोले यू विल रॉक ऐसा वैसा तो ऐसे मोटिवेट करने वाले काफी फ्रेंड्स थे और हस्बैंड हमेशा यू नो मैक वो कैसा है वो हमेशा रहता ही है सो इट स्टार्टेड एंड आई स्टार्टेड विद 2 students एंड द काउंट इज 200 नाउ सो वेरी गुड So happy for you. I keep on seeing a lot of videos where you keep on posting. Every Tuesday you go on for dancing, and every Wednesday you go on for something different. Bollywood सेवा आपके साथ Bollywood तड़का है जो हाँ ट्यूसडे को ट्यूसडे ट्यून्स होता है जनरली मैं जुम्बा वगैरह कुछ सिखाती नहीं हूँ पर मुझे हमेशा से अच्छा लगा है वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस करना अलग अलग सीखना मैंने जुम्बा सीखा था बट एज अ स्टूडेंट सीखा ऐसे प्रॉपर लेवल पे सीखा नहीं है बट आई लव डांसिंग तो मुझे चाहिए था कि मेरे एमफिट के स्टूडेंट शुड नॉट मिस एनीथिंग तो मैं हमेशा ट्यूसडे को मैं एवरी वीक में वो नया गाना बिठाती हूँ एंड देन आई टेक इट फॉर देम एंड देन दे एंजॉय समटाइम्स ऐसा होता है मैम वापस एक बार लगाओ फिर वापस एक बार लगाते हैं तो वो एक once मोमेंट ऑफ एंजॉयमेंट रहता है तो once more वाला जो संगीत में हमें मिलता है वो वापस यहाँ पे भी आपको मिलता है. So you're not missing the events as well. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं और मैं फिर वो स्टार्ट ही ऐसा करती हूँ हेलो एवरीवन हैप्पी ट्यूसडे वो अपना वाला फीलिंग आ जाता है Okay, I think there's a student of yours who's here. I remember studying math from you back in school times. If I talk about your personality today, you're really doing good, ma'am. थैंक यू सो मच आपके व्हाट्स हर students नेम भी अरे मैं जब भी प्रवशी में थी आई वॉज क्वाइट फ्लम्पी तो
अभी completely different profile है, तो definitely great transformation from that time to now. और तभी तो मैं खाली साड़ी पहनती थी, जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, but it was a compulsion कि only साड़ी आप पहननी है. मैथ्स पढ़ाते थे, जो सेज नहीं, दैट मैं आप मैथ मैथ, नहीं पढ़ती थी, इट मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी, अकाउंट्स पढ़ाती थी. अकाउंट्स, ओके, सो ग्रेट. ऐसे भी जैसे आपने जो स्कूल के साथ शुरुआत की नासिक से, वो स्कूल ऐसे ही, वो नाम ही इतना फैंटास्टिक है, आई वुड से प्रवशी, और उसके सारे स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हो बहुत अच्छे हैं, बिकॉज एक तो आपके सामने ही बैठा है, राइट इन फ्रंट, बिकॉज आई एम अ प्रवशी. क्या बात है, तो वो अच्छी होनी है. अच्छी, डेफिनेटली. एम फिट रॉक्स, और डेफिनेटली दीप्ति, इट रॉक्स. दीप्ति इज वन ऑफ माय फर्स्ट मंथ वाली स्टूडेंट जो अभी तक है. एंड उसका हमेशा का एक ही डायलॉग रहता है, दीप्ति तू बस वृशाली पे भरोसा कर, उसको कोई क्वेश्चन मत पूछ. वो हमेशा बोलती है ना, whenever I give her diet ना, मैं उसको पूछती हूँ कि दीप्ति आर यू मिसिंग ऑन एनीथिंग, शुड आई ऐड ऑन दिस, आई मैनेज द कैलेंडर. नहीं, बस तुझे, तुला जे करायचे ते दे, मी तुझ्यावर भरोसा कर. So Dipti देख लीजिए, she is rocking definitely, and students and friends like you are supporting her. That is such a good thing. Keep supporting her with everything, with all the good vibes. Anything, Vrushali, that you want to share with our people that who are here? I mean, I would just like to ask one more thing. People who come into the event industry now, or people who wants to become an anchor, what would you suggest? एंकरिंग के लिए एक तो वॉइस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है. मतलब आपकी वॉइस अच्छी है तो भले आपकी पर्सनालिटी, आप फैट भी रहोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज जब आप बोलना चालू कर दोगे ना, तभी लोग खाली सुनेंगे, देन दे विल नॉट सी योर पर्सनालिटी. True. पर वो आवाज अच्छी होनी, आपको उतार चढ़ाव कहाँ पे लेना है वो पता होना चाहिए, और वो एक्सपीरियंस के साथ सीख जाते हैं, किसी किसी को इनबिल्ट ही रहता है. बट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामने वाला ऑडियंस है ना, आपको आपको इंटरेस्ट मेंटेन करना है कि यार सामने वाला बोर भी ना हो. चलो आप कभी कभी ऐसा होता है रोहन कि हम लोग एक ही क्लाइंट के साथ काफी सारे पार्टीज करते हैं. दैट टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो जो लास्ट टाइम हमने बोला है वो रिपीट ना हो. सो डेफिनेटली अपने आइडियाज भी नए लाओ. एंड एंकरिंग बहुत बड़ा सेक्टर है. मतलब इफ यू आर सीइंग, एवरी एंकर वाज बिजी बिफोर द लॉकडाउन. इतने अच्छे इवेंट्स चालू थे कि सारे एंकर्स बिजी थे नासिक के. बट अभी ये लॉकडाउन है, बट ठीक है, टाइम बीइंग है, देयर आर अपॉर्चुनिटीज एंड यू कैन डू इन दैट. बट वही है कि एक्सपीरियंस लो, एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक क्लाइंट, हर एक क्राउड अलग रहता है. ये नहीं है कि आपने ये कर लिया तो वो भी कर पाओगे. जैसे मैंने कहा कि मुझे हर एक इवेंट के पहले, बड़ी इवेंट होती है तो मुझे डर लगता है. लाइक सी, बर्थडे पार्टी इज डिफरेंट फ्रॉम मॉल एक्टिविटी. मॉल में कौन लोग आते हैं, कैसे लोग आते हैं, यू डोंट नो. एवरी पर्सन इज डिफरेंट. तो आप हैंडल करने के लिए आपको एक्सपीरियंस वहां पे बहुत मैटर करता है. What was your first event like? I missed out on that question. What was your first event like? You said you earned 500. What was the event like? क्या था? इट वॉज बर्थडे पार्टी, और मुझे सिर्फ वो 500 इसलिए मिला था क्योंकि मैंने वहां पे अपने ही इवेंट में एंकरिंग किया था, और वो अंडर ड्रीम्स इवेंट था, और बलून डेकोरेशन वगैरह था, सब बाहर दिया था. रोहन कुछ भी नहीं पता था, पर मैंने एंकरिंग किया था इसलिए मुझे वो 500 रुपीज मिला था. पर आई वॉज सो हैप्पी. आई स्टिल हैव दैट पेज. मैं जब भी पढ़ती हूँ, आई रिमेम्बर फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड. So it is like, you know, aim fit और dreams event, they are like babies to me. मैंने उसको नरिश किया है, उसको, उसके लिए काफी मेहनत की है. तो जब लास्ट लॉकडाउन में मैं ऑफिस में गई थी रोहन, इट्स वेरी हर्टिंग कि जब मैंने देखे मेरे सारे इवेंट्स के सब सेटअप्स, दे वर जस्ट लाइंग डाउन. मतलब जिसके लिए हमने इतने मेहनत किया था, इतना इन्वेस्ट किया था, दे वर जस्ट लाइंग डाउन. बहुत बुरा लगा था मुझे कि एक वायरस की वजह से इंडस्ट्री, फुल इंडस्ट्री इज सफरिंग. और No problem. Everything, nothing is permanent. yes, nothing is permanent, and we have to you know, take the efforts. हमें चालू रखना है. So going on, and by आपने God grace, Infit is doing good. इंडस्ट्री भी ओपन हो ही जाएगी जल्द से जल्द.
आपने प्रूव किया है नथिंग इज परमानेंट. आप पहले चबी थे, अभी आप एकदम फिट एंड फैबुलस. इतना परमानेंट नहीं था, तो दिस इज ऑल्सो जस्ट अ टाइम बीइंग थिंग. सो in the first episode, when we had the first episode, I had shared a very small story of mine. As it says, it's my story. A lot of people keep on asking, आपका स्टोरी क्या है? तो मैं बताऊंगा कभी ना कभी. पहले मुझे मेरे सारे लोगों का स्टोरी बताना है लोगों को. सो एक एक ये था कि आई स्टार्टेड वर्किंग as a sales executive in United Colors of Benetton. जो पहले आई थिंक इट वाज इन द ईयर 1997 98 समवेयर और 99 फर्स्ट आया था 12 to 12 के पास में यूनाइटेड ऑफ कलर्स ऑफ बेनेटन. सो तब फर्स्ट सैलरी मिला था विच इज 1300 रुपीज आफ्टर 1 month ऑफ वर्किंग. और सेल्स एग्जीक्यूटिव मतलब आप आओ तो आपको कपड़े दिखाने, उसको फोल्ड करके वापस रखना है. दैट वाज माय जॉब. Believe me, people, I'll keep it ready. The next episode, in the next episode on the 8th, where I'll keep it ready. I still have that envelope of 1300 rupees, and I have not used one single rupee out of that. Because somewhere वो एक इमोशनल है कि वो मेरे 1300 वो थे जो I started working, you know, and वो है अपने पास रखा है इस इमोशन से, इस वाइब से कि जब तक वो है मेरी एनर्जी डाउन नहीं होने वाली ही. आई कीप ऑन डूइंग गुड, एंड जब तक वो चीज है इट इज अ ब्लेसिंग. सो बरकत. आई अंडरस्टैंड द इमोशन दैट यू आर गोइंग थ्रू, बट इट्स कंप्लीटली फाइन. एंड वी आर योर इवेंट इंडस्ट्री बहुत चलने वाला है. वैशाली के इवेंट में करने वाला हूँ, ड्रीम इवेंट्स के काफी इवेंट्स में करने वाला हूँ. तब वैशाली यहाँ पे क्लास. और डेफिनेटली. So we have anchor Shalaka also. I'll interview you, Rohan, for your story. Shalaka, please. I think if you and me come for an interview, we'll keep on laughing. हम सिर्फ हंसते रहेंगे और हम लोग कभी बात नहीं करेंगे. So I no Shalaka. No means no. Okay, so I want to ask you, Vishali. Now, since we're talking about your entire journey, teacher बन गए. ओके, इवेंट इंडस्ट्री रॉक कर लिया, एंकर बन गए, फिटनेस ट्रेनर बन गए, यू लव डांसिंग, तो आप डांस तो अच्छा कर ही लेते हो. ये एक्चुअली पैशन था कि आपने सोचा कि दूसरा कोई कुछ कर ही नहीं पाए, मैं ही करूं सब? व्हाट वाज द रीजन? नहीं, ये डेफिनेटली पैशन था. एंकरिंग तो डेफिनेटली पैशन था. और फिटनेस, जैसे मैंने कहा कि जो मेरी स्ट्रगल है वो कोई और ना करे, इसलिए मुझे एक राइट प्लेटफॉर्म, एक राइट वे ढूंढना था, जो मैंने ढूंढा. और इसीलिए मुझे आई कैन कनेक्ट विद देम कि व्हाट माइंडसेट दे आर हैविंग और वो कौन से वे ऑफ थिंकिंग में जा रहे हैं. जब मैं छोटी थी रोहन, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं ना बहुत कराटे वराटे करती थी. और जब तक मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब तक मैं बहुत ज्यादा पतली थी और मैं खाती भी बहुत थी. अभी भी मेरा फूड इंटेक अच्छा रहता है. जब भी आप देखोगे मेरी प्लेट फुल रहती है, मुझे आधी प्लेट बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है. तो जब मैंने कराटे वराटे सब छोड़ दिया, मैंने गेम्स छोड़ दिया, तब मैंने बहुत ज्यादा पुट ऑन कर लिया था व्हेन आई वाज इन 10th. और 10th कॉलेज आई वाज अ चबी चाइल्ड. और तब वो ऐसा रहता है एरा की कॉलेज है, आप यंग हो, यू नीड दैट अटेंशन. और तभी आई वॉज लाइक फ्लम्पी. ऊपर से मैं अपने ही इसमें रहती थी, चलो मेरे से कोई बात नहीं करे तो मैं भी नहीं बात कर रही हूँ, ऐसे टाइम्स में. तो ऐसा टाइम था कि मुझे बुरा लगता था कि मुझे प्रॉपर तभी भी गाइडेंस नहीं मिला था कि कैसे पतले होना है. तो जब भी कोई किसी को बुरा लगता है ना कि आई एम फैट, तो आई कैन कंप्लीटली कनेक्ट विद देम कि आई हैव गॉन थ्रू दैट जर्नी. सो इसीलिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि उनको they enjoy their food, they enjoy their fitness. जब भी वो क्लास में आए वो फ्रेश फील करे. I always start with bang on, okay, welcome, ये वो. तो ये मेरा हमेशा इंटेंशन रहता है और अभी हमेशा रहेगा कि मेरे स्टूडेंट्स शुड ऑलवेज गेट द रिजल्ट्स व्हाट दे डिजायर फॉर. True. And for Shalaka, I would say this, though it's Vishali's interview, but Shalaka has recently
come out of COVID. She was quarantined for 14-15 days. So Okay. Aga, I am so happy to see you back. She's all fine and we had a talk this morning only. और हम लोग वैसे ही जो हम लोग ने जैसे ही फोन किया तो पहले तो हम लोग हंसना शुरू कर दिए. हम लोग को पता ही नहीं चलता मुझे शलाका क्योंकि हम हंसते क्यों है. हम बात कम करते हैं, हम हंसते रहते हैं ज्यादा. So Shalaga, welcome back. I'm so happy for you. Yeah. Welcome back, Shalaka. Take care. Please be absolutely fit now. Okay, we have to do a lot of events together. और हम लोग बहुत ही जल्द शलाका यू एंड मी आर डूइंग ड्रीम इवेंट्स का एक इवेंट. Sure, sure. Mac is gonna hire us and Roshali is taking care of the backstage. बोल दिया. It'll find it. So now we have some time left. Roshali, your journey has been wonderful and definitely जितने आपके friends हैं जो कितने लोग यहाँ पे आए हैं जो बोल रहे हैं all-rounder Roshali, multi-talented Roshali, all these things. Guys, believe me, it takes a lot of sacrifice. It takes a lot of consistency. बहुत सारी चीजें दे देनी पड़ती है लाइफ की. जैसे अगर फिटनेस आना है, फिट होना है तो खाना पीना क्या करना है तो आप you have to give up on a lot of things. So it's a real struggle. And that is why the entire series has been made. So we come to know about our people who have been doing so good. उनके struggles क्या है main? Because it's again I repeat, it's very easy to sit and comment on people that ऐसा होता है वैसा होता है. You know, it's not good. So Roshali, super life journey has been great, and all are here because we are gonna work a lot now again. और हम लोग बहुत अच्छा करेंगे. एंड मे बी थोड़े टाइम बाद मैं वापस एक बड़ा इंटरव्यू लेके आऊं और मैं वापस आप लोगों को बुलाऊं एंड we'll share the stories again. We still have some time in hand, Roshali, and we have the rule that if there are questions coming from people, we would like to appreciate those questions and हम लोग उनका आंसर देना चाहेंगे. So people, and now it's your platform. You can ask anything to Roshali. Don't ask me. Please. All Shalaka की तरफ से for this great work, Rohan, Roshali, best wishes to you for your future. Thank you, Shalaka. Thank you so much. Yeah, so जो लोग दिल भेज रहे हो, please जल्द से जल्द आप लोग हम लोग को questions पूछ सकते हैं. कितने सारे दिल आ रहे हैं यार. एक दिन Monty is typing. बहुत कम बार होता है that Rohan is listening. Yeah. I do not listen. One of your memorable moments, events, Roshali. That's for you. Sorry? Your most memorable event. Most memorable event. One of the most memorable event was with Sibyl Bhabhi, जो मेरी भाभी है, you know संदीप भैया. इम्प्रेशन का फैशन शो था, निशिगंधा वाट जी आने वाली थी और प्रेशर इसलिए था क्योंकि मेरे घर का इवेंट है और मुझे सबसे बेस्ट टेस्ट देना था और वो बहुत ज्यादा उम्दा हो गया था. मतलब आई वॉज रियली वरीड. मैं मैक को बोल रही थी ये मैं अच्छा कर पाऊंगी ना क्योंकि भैया का इवेंट है और एक्टर आ रही है और मुझे बेस्ट देना है. और वो इतना अच्छा हुआ था कि आई वॉज लिटरली लाइक हगिंग भैया की कसं झालं आणि ही वॉज व्हेरी हॅपी. छान झालं एकदम मस्त. सो दॅट वॉज व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट क्योंकि वो अपना इवेंट था एंड आई डिड द बेस्ट. दे वर प्राउड ऑफ मी. और मेरे सारे कजिन्स थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे लाइव एंकर करते हुए देखा था एंड दे वर हैविंग टीयर्स इन देयर आईज की बाप रे ही रुशाली एकदमच वेगळी आहे. म्हटलं हो ही रुशाली नेहमीच वेगळी असते. So that was my memorable event. That was your most memorable event. Yes. और निशिगंधा जी ने मुझे हक करके बोला था वाटर एंकरिंग. तो वो एक चीज वो वर्ड्स में कभी लाइफ में भूल नहीं पाऊंगी. शी इज एक्ट्रेस इन मराठी इंडस्ट्री. I can't speak Marathi, but I know. सब मुझे बोलते हैं यार ये मराठी इंडस्ट्री में ये. अरे मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ. मराठी बोलू का तुमच्या बरोबर. मी मराठी शिकतोय आता. बघ किती चांगलं मराठी. नेक्स्ट क्वेश्चन मराठीतूनच विचार मला. हो तो तुम्हाला आता सांगतो. नाही विचारत नाही, तुम्हाला बोलतो काहीतरी. ओके. जे भाऊ आहे संदीप सोनवणे
त्यांच्या बरोबर मी फर्स्ट फॅशन शो केला होता नाशिकमध्ये. आता इतकं मराठी येत होता, मी बोललो आता संपला. ओके, सो आणि तुझे जे फोटोज आहेत ते मी बघितले होते दादाच्या ऑफिस मध्ये. the most funny one. Okay, Shalaka is asking us one of your embarrassing moment. Vrushali, tell us. Tell us. बोलिए. एम्बैरेसिंग मोमेंट इन इवेंट्स इन एंकरिंग. जब आपने सबको ना बोला था कि आप चीज मत खाओ, बटर मत खाओ, और आपके स्टूडेंट ने आपको खाते हुए देख लिया, ऐसा कोई मोमेंट आप? ऐसा कोई मोमेंट? ओके, एम्बैरेसिंग नहीं, ऐसा कभी नहीं याद है मुझे कि एम्बैरेसिंग है या मुझे रिग्रेट हुआ कोई चीज का. सॉरी. नहीं, कोई तो होगा एम्बैरेसिंग, मेरे तो बहुत है. मुझे हाँ, एक इवेंट में लिटरली क्या हुआ, जनरली है ना मेरी इवेंट का रहता है ना, मतलब ड्रीम्स इवेंट का, बर्थडे पार्टी वगैरह कोई भी शो रहता है और मैं एंकर रहती हूँ, तो आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड. यू नो, अपना पूरा रहता है माइक के ऊपर. और समटाइम्स ऐसा रहता है कि क्लाइंट का बजट नहीं रहता है, हम लोग उनको कितना भी बोले कि लोग. हमारा सबका रहता है माइक के ऊपर, आपका रहता है मैक के ऊपर. अभी आगे. वहां पे भी मैक का रोल है, वो भी मैं बताऊंगी तुम्हें. तो हुआ ऐसा कि मैंने उनको बहुत बोला था कि मैम आप है ना होटल के साउंड पे डिपेंडेंट मत रहो, आप एक प्रोफेशनल साउंड लो, इट मेक्स अ डिफरेंस. नहीं बोले, आप हो, आप मैनेज कर लोगे. लिटरली साउंड हो गया फ्लॉप. क्राउड है 200 लोगों का एंड आई हैड टू प्रिटेंड कि मैं माइक यूज कर रही हूँ और वो चालू नहीं है. और यू कैन अंडरस्टैंड कि 200 लोगों तक पहुंचने के लिए कि मैंने कितना पिच हाई रखा होगा. और लिटरली मैं मैक को आके बोली, मैक आता माझा गळा सुकलाय ओरडून ओरडून. और एंड तक किसी को भी नहीं समझा कि वो इवेंट में माइक चालू नहीं था. बट आई वॉज सो पिस्ड ऑफ. मतलब अभी आप साउंड का भी काम आप ही करोगे? That's really अच्छा. एम्बैरेसिंग नहीं था, पर बहुत गुस्से वाला मोमेंट था कि क्या है ये, सुनते नहीं है. और एट द एंड हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, इवेंट शुड नॉट फ्लॉप तो नहीं होनी चाहिए, अपनी इवेंट अच्छी ही होनी चाहिए, दे शुड गेट द गुड एक्सपीरियंस. पर एम्बैरेसिंग मतलब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ ना मैं. वैसा. Okay, Seema is asking you, and let me say, Seema is into modeling. She's done a lot of shows with me. So she's asking, ma'am, what is the secret of your bright skin? What? बोलो. दुनिया जानना चाहती है, भारत. Food intake, nutrition, lot of water, proper sleep, and stay happy. If you are happy, if you are positive, वो बाहर से भी दिख के आएगा. True that, absolutely true, absolutely true. Anyone else? मुझे ऐसा लगता क्यों है कि लोग पूछना तो चाहते हैं पर पूछते नहीं है. You can just ask questions. You can ask. मैं देख नहीं पा रही हूँ, तो you can ask. रोहन can probably. शाउट आउट दे दो. ये क्या होता है? अच्छा भाई, तुम इतना टेक्निकल चीजें बोलोगे, शाउट आउट दे दो. बाहर जाके चिल्लाऊं? Okay, so how are things now? What is your next planning? What are you doing right now? After the lockdown, how are you going to go about it? What are the projects? फिलहाल इवेंट्स तो अपने, यू नो, वी हैव नो इवेंट्स, और नेक्स्ट 2 months तो इवेंट्स नहीं होने वाले हैं. तो डेफिनेटली मैं मिस कर रही हूँ एंकरिंग, बट आई एम फोकसिंग ऑन मोर नॉलेज गेन. मैं जितना टाइम है नॉलेज गेन कर रही हूँ, सीख रही हूँ नए एक्सरसाइजेस. न्यूट्रिशन में मैं नेक्स्ट लेवल के लिए एग्जाम दे रही हूँ. सो आई एम बिजी इन दैट वे, क्योंकि यही टाइम है. वंस इवेंट्स आर स्टार्टेड तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यू नो अपने पूरे शाम को ही इवेंट्स रहते हैं. फिर मेरे सुबह के क्लासेस, शाम के क्लासेस, फिर इवेंट्स करके आओ, देन किड्स, उनकी स्कूल, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टाइम मैनेज करना. सो नाउ अभी टाइम है तो डू द थिंग्स जो हमें करनी थी हमेशा से. Super. So I think we are done with the time, and there are no more questions also coming in. So Vrushali, thank you very much. It was lovely interacting with you.
The entire concept of the series is, as I had a talk with you, that we know people, but we still do not know people. So over here, I've come to know a lot of things about you. Your entire journey has been fabulous, and I, as a friend, as a person who knows you, you're gonna do great. Superb. All the very best for everything. Please take care of all the injuries. Do not injure yourself. Please go softly. आराम से हमें बहुत देखना है आपको. So please don't get into it too much. Guys, thank you very much. One more thing. Uh, again, start में session में बोला था मैंने. Now we are coming up with the vaccines. हर जगह पे वैक्सीन आ चुकी है. A lot of fake news are going on. कि पीरियड्स के टाइम पे वैक्सीन नहीं लेना है. गर्ल्स, ऐसा कुछ नहीं होता है. लास्ट टाइम पे भी बोला था. प्लीज गो कंसल्ट योर डॉक्टर्स, कंसल्ट योर गाइनेक्स, टेक अ प्रॉपर एडवाइस एंड टेक अ वैक्सीनेशन. घर बैठे बैठे हम लोग गाली देते हैं कि हमें बाहर जाना है, ये करना है. जब वैक्सीन है, सो प्लीज गो रजिस्टर योरसेल्फ एंड टेक अ वैक्सीन. Please do not go with the flow of fake news, right? Please go and consult a doctor. There's Ankita said something kudos to you, Rishali. It really takes a lot of brains to show such a presence of mind. All the best to you. Aim for it will grow bigger with all your efforts. Great. Shalaka, thanks DJ Monty. Hey, thanks DJ Monty. Yeah, thanks. Thank you, Dream Events Nasik. Thank you so much. It was great working and talking with you guys. Rushali, thank you very much for all your valuable time. Take care. Give my regards to Kedni, both your lovely kids. Please give regards to Mac. Say a big hi to him. And Yes. guys, see you on Saturday again with yet another personality, completely from a different industry, I would say, and a unique personality, I would say, because वो हमारे से भी ज़्यादा senior है. So मैं उनको लेके आ रहा हूँ. Thank you very much, everyone. Stay tuned because we are coming up with a lot of other things. Thank you, Rushali. Have a great time. Good night. Please take care. Bye bye. Take care.